Welcome guys, you guys are watching Studio Chart Time, only on TV Chart, concept by Haima Khan. This is your host Bilal Hussain. पीआईए की जो इशू हो रहा है पूरी दुनिया में, पीआईए के पायलट्स के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, Farad Hussain. He also came. We did an episode before in which we described to you guys what happened. जो क्या हुआ, कैसे क्रैश हुआ, उसकी डिटेल्स के ऊपर. And he was basically bang on that, all the results, but he gave us the report right away, and that pretty much the report came out. So today we have him again, right? So we'll be right back after a short break, and we're going to bring him on to discuss all the details. Assalamualaikum. Walaikum assalam, Bilal. How are you? I'm great. आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. Well, first of all, मेरी तरफ से आपको और आपकी टीवी चार की टीम, अरशद खान, हाइमा खान और आपके सारे viewers को अस्सलाम वालेकुम. And it's good thing that I'm meeting you, but at the same time, it's kind of sad that I'm meeting and we're talking about these issues right now. But we're here, so I'm here to talk. Before we go, I want to tell you all the details about Faraz. Faraz flew with Qatar Airways, Etihad Airways, and right now he is flying with DHL.
right? And also, he's an instructor on A320, the same plane, the one went down. He is also an instructor for that. And not only that, he's also the first Pakistani pilot who ever flew A380. So he was the first pilot from Pakistan. He's on an A380 ski flight key. And now he's with us to give us all the details about the licensing issue what this Pakistani pilots are having right now. तो देर ना कराते हुए आपसे पहला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे फराज कि आप हमें प्लीज बताइए व्हाट्स द डिटेल अबाउट गेटिंग द लाइसेंस कैसे रजिस्ट्रेशन होती है इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड सो व्हाट्स इट कैन यू गिव अस सम डिटेल्स अबाउट दैट Sure. Of course, we can discuss about how do you get the pilot license. आजकल यही seems to me like it's a hot topic. आप BBC पकड़ लें, CNN, ABC7, The Guardian, Washington Post. It seems to be the hot news at the moment. As far as the procedure, how to acquire the pilot license, अब ये US हो, UK, anywhere in European Union, even Australia, Pakistan, Far East, कहीं भी जाएं, कुछ basic requirements होती हैं, you have to fulfill in order to get the license. सबसे पहली चीज, you have to get the medical done. मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में आपका ECG, आपका ENT, eyesights and stuff like that, वो सारी जब टेस्टिंग हो जाती है, and a lot of like I think even Pakistan civil aviation, even on the basic license पे, student pilot license पे भी उसको शुरू करने से पहले आपको psychiatric test, you have to go through a psychiatric evaluation. वो है, और क्या कहते हैं, उसके अलावा आपके written test होते हैं. Periodically you have to go through some written test. अगर जो सबसे पहला license आपका होता है student pilot license, which is like a really basic, just for आपके एक identification बनाने के लिए, आपको just to get you entered into a flight program. फिर आप उसके बाद कुछ घंटे करते हैं, जैसे 40 घंटे या maybe slightly more, you get private pilot license. अब देखें, जो आप लाइसेंस में जाते जाएंगे, आपकी टेस्टिंग होती जाएगी. अब उसमें टेस्टिंग में क्या है? आपके रिटन टेस्ट हैं और आपके फ्लाइट टेस्ट हैं for that level of for whatever type of license you're requiring at that time. तो प्राइवेट पायलट के लिए भी आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका फ्लाइट टेस्ट होता है. फिर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खाली अपने लिए जहाज उड़ाएं, लेकिन अगर आप चाहें कि you want to be on a commercial level, किसी एयरलाइन के लिए फ्लाई करें, then you have to get commercial pilot license. अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस का ये कि मजीद और घंटे तो होते ही हैं, उसके अलावा एक और आपको रिटन टेस्ट देना होता है, और फिर उसके बाद फ्लाइट टेस्ट भी होता है, which is slightly more complicated than private pilot license. जब वो हो जाता है, फिर उसके बाद एक और है आपका, जो कि 1500 घंटे मिनिमम होने चाहिए, and then you get airline transport pilot license, जिसको ATPL भी बोलते हैं. सेम चीज, उसके लिए भी आपको रिटन टेस्ट देने होते हैं, और फिर उसके बाद फ्लाइट टेस्ट भी होता है. अब ये चीज तो आपके साथ चल ही रही होती है, उसके साथ साथ आपको हर साल, या डिपेंड ऑन योर एज, आपको हर 6 महीने बाद आपको मेडिकल भी कराना पड़ता है, which is like a renewal for your initial medical. तो इसमें काफी टेस्टिंग होती है और काफी हमें आपको हर तरीके से जांचा जाता है. अब जो आजकल सवालात उठ रहे हैं कि फेक, how do you fake a license? How do you do this thing? It's a very complex issue. I mean, we'll discuss a little bit further on that. Yeah. But as far as is that the same procedure in Pakistan and the rest of the world? Do they have the same procedure of getting this license? Absolutely. Initial जो आपकी जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी फ्लाइट स्कूल में, तो आपको मेडिकल आपको कराना पड़ता है. There is no way around it. You have to go through a proper medical. और ये भी नहीं आप मेडिकल किसी भी क्लिनिक में जाके करवा लें और and that's it, या किसी डॉक्टर से बोलें कि मुझे पास कर दो या सेटिस्फाई करो, I mean whatever. आप ऐसा नहीं कर सकते. You have to go to like a approved सिविल एविएशन मेडिकल सेंटर्स, जैसे कराची में भी हैं, और आई थिंक इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, और उन्हीं के अप्रूव्ड डॉक्टर्स आपको वो जो लाइसेंस मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए वो दे सकते हैं. अलावा उसके आपकी They must have a special form for that, right? Absolutely, yeah, we do. और फिर उसके अलावा आपको अपने जो जिस एरिया में रहते हैं वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट लेकर आनी है, जस्ट टू प्रूव योर कैरेक्टर. लाइक आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपके पीछे कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और once you get those things, you get your medical, you get your education like credentials, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है.
एज फॉर द एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आप कौन से स्कूल में गए हैं, कौन से कॉलेज में गए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में गए हैं, इवन आई मीन इतना क्रूशल नहीं होता है जब आप फ्लाइट स्कूल ज्वाइन करते हैं, उस वक्त आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं या कर सकते हैं या कर चुके होते हैं, लेकिन वो जो चेकिंग होती है आपके डिग्री वगैरह की, वो इतनी उस लेवल पे नहीं होती है। ये सारी बैकग्राउंड चेक तब होती है जब आप किसी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं, तब वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, आपका लाइसेंस का वेरिफिकेशन, आपके एजुकेशन के जो डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं, वो सारी चीजें, मेडिकल है। लेकिन फ्लाइट स्कूल के लेवल पे इतनी छानबीन नहीं होती, ये सब चीजें होती हैं जब आप किसी एयरलाइन में अप्लाई करते हैं टू बिकम अ पायलट। Because I think maybe the reason is that at that time you may be flying for yourself as a hobby, Absolutely. right? So they don't test that much, but the companies do test when you apply for their job, right? Absolutely. There is no way around it. और हर कंपनी का प्रोसीजर क्या डिफरेंट है, ये pretty much very similar to each other, or is there like loopholes or something? Well, I'm sure there are loopholes in a lot of things, and we're known for that. लेकिन ये है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद फॉरेन एयरलाइन में काम कर चुका हूँ। फॉरेन एयरलाइन में जब आप काम करते हैं, दे डू देयर, आई मीन, और जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से अबाउट इतिहाद, इतिहाद में 140 डिफरेंट नेशनैलिटीज काम करती हैं, 140 डिफरेंट नेशनैलिटीज। सो सारे लोग जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनकी अपनी अथॉरिटीज, उनके अपने मुल्क से उनके जो लाइसेंस इशू हुए हुए होते हैं। सो इसमें काफी टाइम लगता है। इत्तेहाद क्या करते हैं, इत्तेहाद की जो हायरिंग टीम है, एचआर टीम है, और जो पायलट रिक्रूटमेंट की जो टीम है, वो आपका लाइसेंस की कॉपी लेते हैं, वो आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री, रिस्पेक्टिव जो भी इशूइंग अथॉरिटी, जो एजेंसी होती है, उनको आपके कॉपी बना के भेजते हैं, एंड दे वेट। ओके, आपकी वेरिफिकेशन आती है कि हाँ भाई ये वही शख्स है जिसने अप्लाई किया जॉब पे। उसके आवर्स कंफर्म किए जाते हैं, उसकी लॉग बुक में उसके मेडिकल चेक किया जाता है। सो एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड एंड इट हैज टू बी वेरीफाइड, देयर इज नो वे अराउंड इट। अब लूप होल, अब ये है कि कौन वेरीफाई कर रहा है, वो आपका जान पहचान का है, तो देन देयर इज अ लूप होल राइट देयर। सो दैट्स हाउ इट That's the companies who is hiring them. एब्सोल्युटली ट्रू, यस। कुछ एयरलाइंस वो खुद बैकग्राउंड चेक करती हैं, और कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती हैं। उनकी कुछ कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आप उनके लिए Third बैकग्राउंड party. चेक करके देती हैं, या थर्ड पार्टी। एब्सोल्युटली यस। Right. तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज दैट हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन यस मिस्टर गुलाम सरवर खान, जो उन्होंने जो हमारे आके सबके सामने बोला है कि फेक लाइसेंसेस हैं। कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट, लाइक उन्होंने उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, एंड व्हाट्स द आउटकम ऑफ दैट एंड हाउ ट्रू वाज दैट? वेल, देखें, मैंने उनकी तकरीर मैंने खुद भी सुनी है। उसमें कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुलाम सरवर खान, आई अंडरस्टैंड वो अभी के जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। I mean, is he qualified to make a statement about aviation? अगर आप उनका करियर देखें, I understand, देखें, सबसे पहले ये कि वो seasoned politicians हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुकी हैं, वो अभी 1-2 साल पहले politician बने। I understand उनका जो politics का जो career is like 30 years plus. I think since 1985 he is being a politician, right? तो I think at ये level पे उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं और कौन सी जगह पे यूज कर रहे हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, उन जगहों पे जहां पे दूसरे पाकिस्तानी रहते हैं, जहां पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। I think he, being a politician, he should have been very careful about using the words that he used. देखिए, उन्होंने शुरू में ये बोला है कि fake documents, right? Fake licenses. अगर आप कभी fake, और फिर उसके बाद आई थिंक उनके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज करके उसको डूबियस बोला। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फेक एंड डूबियस, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आप 100% श्योर ना हो और आप उस कैलिबर के पॉलिटिशियन हो, मे बी इट्स बेस्ट फॉर एवरीबॉडी कि आप थोड़ी एहतियात बरतें, या तो उर्दू में ही बोल दें। क्योंकि हुआ यह है कि देखें, फेक मीन्स उन्होंने जिस कन्विक्शन से बोला है फेक, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है एंड दीज पीपल आर
already, like claim to have a fake documents. जबकि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है अभी और उन्होंने ऑलरेडी सबको कह दिया कि इट्स फेक. बाद में शायद प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा dubious what I understand dubious mean it's like it's still doubtful, it's still uncertain, still he has to, it's still questionable, right? अब जब आप fake बोलते हैं which means you have a counterfeit document which is not entirely true. अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है. So अभी हुआ ये कि देखें अब ये जो सोर्स जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सरवर खान की, इनको किसने ये सोर्स दी है, कहां से ये सोर्स इनको मिली, और अगर मिली है तो अगर ये सोर्स, अगर ये इंफॉर्मेशन थी तो पहले रिवील क्यों नहीं की गई? व्हाई आवर इंटरनेशनल एयरलाइन वाज फ्लाइंग ऑल दिस टाइम विथ फेक लाइसेंस होल्डर्स? क्यों? ये अगर ये इंफॉर्मेशन थी तो सरवर खान के आने तक का इंतजार क्यों किया गया? ये पहले भी बताया जा सकता था, ये पहले बताना चाहिए था. It's matter of lives, it's matter of a lot of people's life, it's matter of safety. और पाकिस्तान की जो एयरलाइन है ये पाकिस्तान का वकार है, पाकिस्तान का, it's the Pakistan's ambassador. जिस मुल्कों में पाकिस्तान का जहाज जाता है वहां पे एक पाकिस्तान का एक चेहरा दिखाता है, वो पाकिस्तान की शनाख्त होती है उस जहाज से. तो क्यों उसको इतना ड्रैग किया गया, क्यों उसको इतना प्रोक्रेस्टिनेशन की गई उसको डिक्लेयर करने में? उसको आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. जहां तक इनकी क्रेडिबिलिटी का, गुलाम सरवर खान की जो क्रेडिबिलिटी है, ये तो खुद इन्वेस्टिगेशन में थे, ये तो खुद इनकी हाई स्कूल डिप्लोमा, इनकी कॉलेज डिग्री वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन अप अंटिल फ्यू इयर्स बैक. आई थिंक इट्स रिसेंटली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. हाई कोर्ट ने आई थिंक उनके स्कूल का जो डिप्लोमा है उसको तो खैर उन्होंने फारिग कर दिया था, कह के कि चलो दैट्स लेजिटिमेट, दैट्स ओके. बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड उनकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो तो अभी भी क्वेश्चनेबल है. और आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले ये साहब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के आई थिंक मिनिस्टर रहे, और बाय प्रोफेशन ही इज एग्रीकल्चरिस्ट एक्चुअली. सो हाउ कैन एन एग्रीकल्चरिस्ट being a qualified, how can he be so qualified कि वो एविएशन के मौजू पे आके इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल. उसका इम्पैक्ट आप देख ही चुके हैं. शायद ही कोई मीडिया चैनल है जो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात नहीं कर रहा हो. आई थिंक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, ही नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन. आपको पता होना चाहिए आप क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं. You're right about that. And at the same time, जब एक बंदे की एजुकेशन फील्ड में है ही नहीं, I don't know how they can become a minister of that thing, and even they come right. How you can come on in front of the news and all that and say give such interview, जिसकी वजह से हमारा पूरा actually Pakistani pilot, not only in PIA, around the world, anybody who ever studied in Pakistan and became a pilot, there's a question mark on them now. Absolutely. अभी देखिए ना, अभी जो चलें ठीक है, इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, 262 पायलट्स की चलो लिस्ट प्रोवाइड भी कर दी है. अगर आप उस लिस्ट को देखें, अभी वो पूरी लिस्ट ही पे सवाल उठ रहे हैं. उस लिस्ट पे उन पायलट्स के नाम भी हैं जो कि ऑलरेडी डिसीज्ड हैं, जो कि बेचारे इंतकाल कर गए. उन लोगों तक के नाम हैं. उन लोगों के कुछ पायलट्स के, I don't know who put together this list. उसमें इंतकाल हुए हुए पायलट्स के नाम है. जिन पायलट्स के नाम है उनका लाइसेंस नंबर गलत है, उनकी डेट ऑफ हायर गलत है, उनके नेम्स, कुछ के नेम्स गलत हैं ऑल टुगेदर. तो ये लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को एफिशिएंट दिखाने के लिए ये लिस्ट तैयार की. Without a doubt that is the case. He's trying to outshine in a way, which of course, देखिए ना, अब मैं क्या बात करूं आपसे. आज पहले जब इस एक्सीडेंट से पहले क्या कर रहे थे? Well, that's the question. ये जो हायरिंग का जो सिलसिला है, ये अभी इस हुकूमत के साथ नहीं है. It's been going on for quite some time now. इसमें पिछली जितने भी हुकूमतें हैं उनके दौरान अब यही तो सिस्टम है कि जो भी आता है पावर में, they bring their own people. वो जो of course most of them are not even qualified. लेकिन यही है कि फिर एक जब भी टर्नओवर होता है, जब अपना टेन्योर पूरा करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है, they bring their own people. Now that's the problem, because एक जो सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, एक जो आपको टेस्टिंग की जो हम लोग पीआई की जो टेस्टिंग है, सिविल एविएशन की जो टेस्टिंग है, वो सब जेपरडाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी आता है वो अपने लोगों को भरना शुरू कर देता है, regardless of their qualification, which is why we're at right now.
क्योंकि ये मैंने बहुत देखा कि सबका कोटा एक अपनी चीज दे के आते हैं, इस काइंड ऑफ अ कोटा सिस्टम, राइट? दैट्स ऑलवेज बिन देयर। ये केपीआई के बारे में ये सुना ही नहीं, मैंने देखा भी है। तो इसी के साथ चलते हैं कि अब ये सब कुछ स्पेशली गुलाम सरवर खान की स्टेटमेंट के बाद, हमारे एविएशन के जो मिनिस्टर है उनकी ये स्टेटमेंट और ये सारी चीजें आने के बाद, अब हमारे जो पाकिस्तानी पायलट हैं उनके ऊपर व्हाट्स द इम्पैक्ट गोना बी ऑन पाकिस्तानी पायलट अराउंड द वर्ल्ड? Well, it's going to be a huge impact. I can already see it coming. देखें बिलाल, मसला ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा इंटेंशनली कोई गलत बात करते हैं टू डीमोनाइज पाकिस्तान. The problem is sometimes they just say things just to make themselves look much smarter, which is sad. देखिए, हमारा मसला ये कि हमारे जो पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जो भी आता है बोल देता है. अगर जैसे सरवर खान है, गुलाम सरवर खान, उन्होंने जो बोल दिया है, अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज किया हो, जिसमें उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मेरा स्टेटमेंट या मेरा ये मतलब नहीं था. ऐसा कुछ नहीं आया है. क्योंकि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वहां पे हमारे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसने जो चाहा बोल दिया. गलती मानना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है. Well, that's the sad part. I mean, आप किसी भी और मुल्कों में चले जाइए, आप खुद कनाडा में हैं, आप खुद काफी अरसे से कनाडा में हैं, and I know you have observed that throughout your time in Canada. कोई भी politician कोई भी गलती करता है, even prime minister, very next day their spokesperson or maybe themselves, they come out and they just apologize and they try to fix whatever they said wrong, you know. लेकिन यहाँ पे तो इतनी बड़ी बात कह देना, उसके लिए कोई regret, कोई अपॉलॉजी ऐसे नाम की भी नहीं है. बट आपने पूछा पाकिस्तानी इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तानी पायलट्स के लिए. it's gonna be a disaster. Let me just put that this way. In one word, it's gonna be a disaster. Why? Because देखिए, अभी जो फिगर्स आए उसमें तकरीबन 107 के करीब पाकिस्तानी पायलट हैं जो ओवरसीज एयरलाइंस में काम करते हैं. ग्रांटेड अभी इस वक्त कोरोना की वजह से ट्रैवल इतना नहीं हो रहा है, काफी एयरलाइंस अभी ग्राउंडेड हैं, पायलट्स एंड सारा स्टाफ ग्राउंडेड है, लेकिन इवेंचुअली इट हैज टू कम बैक अप, राइट? तो होगा ये कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी कितने मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन जिसमें आपकी इवन एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर एयरवेज, Oman, Qatar, Kuwait Airways. Actually, just to clarify, Kuwait Airways, from what I understand, हमें न्यूज आई है कि Kuwait Airways ने बोला है कि हम कोई वेरिफिकेशन करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई पाकिस्तानी पायलट्स हैं ही नहीं. उनके पास पाकिस्तानी ग्राउंड इंजीनियर्स हैं जिसको उन्होंने सबको ग्राउंड कर दिया. That's what they're doing at the moment. उसके अलावा, as you mentioned, I think you briefly said something about the European Union का जो बैन है, वो है आज जो पाकिस्तान को हम उसके ऊपर लेके चलते हैं कि यूरोप ने हमें जो बैन किया है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्या होगा, उसके ऊपर भी आप डिटेल्स दीजिए. श्योर, उस पर अभी 1 मिनट आते हैं, लेकिन अभी ये है कि देखिए, अभी होगा ये पाकिस्तानी पायलट्स जो देखें, अभी कोरोना की वजह से काफी एयरलाइंस जो है उनका उन्होंने काफी ले ऑफ्स हुई हैं. काफी जो एयरलाइंस है अभी वो थोड़े दिनों के बाद डाउन साइज करेंगे अपना फ्लीट. डाउन साइज फ्लीट करेंगे तो जाहिर है काफी होगा क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग कम हो जानी है. इवन लोगों में डर रहेगा ये फॉर फ्यू इयर्स. यही है, क्योंकि काफी जो फ्लीट है वो डाउन साइज अभी जो होंगे, काफी एयरलाइन बहुत अभी टाइम लगेगा दोबारा एयर ट्रेवल को अपनी वो जहां पहले था एक जमाने में, और हु नोस, इट मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम, जस्ट लाइक इट वाज आफ्टर 9/11. लेकिन ये कि अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि देखें, जितने कम जहाज होंगे उतने कम पायलट्स की रिक्वायरमेंट होगी. उसमें होगा ये कि कुछ बहुत से, फिर जाहिर है बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पायलट्स अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में. यहाँ तक कि कहा जाता है कि इवन इन द यूएस एट द मोमेंट, कम 1st of October 20,000 plus very well trained pilot will be jobless. तो ये होगा, ये सारा सिलसिला अराउंड द वर्ल्ड है. तो काफी हाई कंपटीशन होगा, कंपटीशन बहुत होगा, उसमें अभी कोई भी जॉब निकलेगी. देखिए आपके साथ, लेट्स जस्ट पुट अ सिनेरियो, लेट्स से you're an airline, you want to hire pilots. आपके पास 2 पायलट्स आते हैं, एक पायलट किसी भी और मुल्क का आता है और एक पायलट आता है जो पाकिस्तानी है. आप किसको रखेंगे? उस बंदे को रखेंगे जिसके पास लाइसेंस, लॉग बुक्स एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, वेरीफाइड.
और एक आता है जिसकी ये रेपुटेशन है। आई एम नॉट सेइंग दैट नेसेसरली उनके पास वेरीफाइड लाइसेंस नहीं होगा, लेकिन लेट्स जस्ट से अगर But आपके पास even दूसरा that, बंदा आता है पाकिस्तान का, check that. मोस्टली क्या होगा कि उन्हें पहले ही साइट पे कर दिया जाएगा, बेसिकली ऑटो रिजेक्ट। एब्सोल्युटली उसका होगा ये कि जब एक पायलट पाकिस्तान का अप्लाई करेगा जॉब के लिए, जाहिर है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, फिर उसके बाद फोन इंटरव्यूज होते हैं, स्काइप इंटरव्यूज होते हैं, एंड देन दे इफ दे फील लाइक ओके ठीक है इनको बुलाओ इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, सिमुलेटर इवैल्यूएशन के लिए, फिर आगे बात बढ़ती है। वो जब एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेगा कोई भी पाकिस्तानी पायलट, और अगर आपके पास चॉइस है एक दो वैकेंसीज के लिए, आपके पास लाइन लगी हुई है पायलट्स की, उन पायलट्स के लिए जिनके पास इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, सील्ड हैं, एंड इट्स लाइक कंप्लीटली वेरीफाइड, तो आप चाहते हुए भी सोचोगे कि why should I waste my time on this pilot, जिसके लिए मुझे पूरी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैं बता दूं आपको बिलाल, कभी जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि आज मैंने अप्लाई किया वेरिफिकेशन के लिए, यू एज एन ऑपरेटर आपने मेरे लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया और दूसरे ही दिन आपको वेरिफिकेशन मिल गई। कभी कभी आपको एक हफ्ते से 3 महीने तक भी वेट करना पड़ता है। नाउ टेल मी समथिंग, एक एप्लीकेंट आपके सामने है जो कि कंप्लीटली available to fly with all his documents, his or her document, versus एक बंदा जिसके लिए आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। Who are you gonna hire? Even on the top of that, the thing is that it's not even, they might make a system that, or for example, if I am the recruiter, right? Yeah, I don't want to even hire that because then I have to give that answer to my superiors. absolutely. That's also This on the is top of that. यही अब जो देखें पाकिस्तानी पायलट्स का जो इम्पैक्ट होने वाला है, इसका सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल आने वाला है लाइसेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस। But I think before they even go into that, they're just going to refuse it because they have the other options. That's the thing. अगर ये पहले की प्री कोरोना अगर सिचुएशन होती जहां पे पायलट्स की शॉर्टेज थी, चलो ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम भी लगता वेरिफिकेशन के, आई मीन एयरलाइंस वर जस्ट ग्लैड टू हैव यू देयर, राइट? Yeah, because there was a time Pakistani pilots were known for good flying. That is correct. Actually, जो पायलट हैं पाकिस्तान के जिन्होंने प्रॉपरली ट्रेनिंग हासिल की है, जो ये एयरफोर्स वगैरह से आए हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। एब्सोल्युटली, और मैं बहुत सालों के साथ फ्लाई कर भी चुका हूं, सो आई नो देयर कैलिबर। they're good when they have everything available to them, they're really good, no doubt about that. हमारे पायलट्स किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे, किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आराम से compete कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन बात ये आ जाएगी कि अभी इतने सारे पायलट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि जॉबलेस हैं, और अभी जो है कोई भी एयरलाइन चाहेगी कि ऐसे लोगों को हायर किया जाए जो कि राइट अवे ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वहां पे पायलट जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए मसला होगा। अभी 107 कुछ पायलट्स हैं एक्टिव पायलट्स, जो कि पाकिस्तानी पायलट्स जो कि फॉरेन एयरलाइंस के लिए फ्लाई कर रहे हैं। और मुझे जहां तक पता चला है बहुत से लोगों से, जो कि मैं खुद भी फ्लाई करता था फॉरेन एयरलाइन के लिए, तकरीबन सारे पायलट्स को भी ग्राउंड कर रहा है until the verification process is completed. Granted, कोरोना की वजह से वैसे ही फ्लाइट्स नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी ये होगा। I mean, this is sad and but this, देखिए जो हमारे वजीर हवाबाजी हैं, आप मुझे बताइए जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, बेसिकली अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट हमारे खुद लोग आके देंगे, तो EASA जो कि यूरोपियन यूनियन की है, या कि हम तो किसी और को क्यों ब्लेम करें? ब्लेम तो अपने पर। एब्सोल्युटली ट्रू, हम किसी और को ब्लेम कर नहीं सकते हैं। देखिए ये अगर गुलाम सरवर जो कि मिनिस्टर हैं, उनको करना क्या चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था कि अगर उनके पास ये लिस्ट आ गई थी तो उनको इंटरनली PIA और सिविल एविएशन की कोलैबोरेशन के साथ इन लोगों को ग्राउंड करना चाहिए था, इन लोगों को, until the verification process is completely done। उसमें जाहिर है जो जिनके वाकई फेक लाइसेंस हैं या कोई और रीजन की वजह से डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में नहीं है, अब उनको फारिग कर देते। अब हुआ ये कि इन्होंने अराउंड 800 पायलट्स हैं, उनको सबको इन्होंने रगड़ दिया चक्कर में। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। What I think he did it to shine himself. Well, this is sad because this is selfish. उनको देखें, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए क्योंकि we are Pakistani. Every Pakistani is an ambassador of Pakistan.
तो हमें पाकिस्तान को we need to put Pakistan first and then we think about But our hopefully our careers. own ministers and all that, they think the same way. Well, that's the sad part. I mean, तो हुआ ये कि देखिए हर एसोसिएशन, I mean हर सिविल एविएशन का, हर एयर सेफ्टी एसोसिएशन का उनका अपना प्रोटोकॉल होता है. अगर जी. इस तरह की कोई न्यूज आती है, अगर हमारी तरफ से कोई, जब हमारे अपने बंदे अगर आके बोल रहे हैं कि वी हैव कंफर्म केसेस ऑफ लाइक फेक लाइसेंसेस, तो आपके पास क्या चॉइस रह जाती है, आपके पास क्या ऑप्शन है? दे हैव टू गो थ्रू देयर प्रोटोकॉल व्हिच द प्रोटोकॉल डिक्टेट्स. उनको अपनी एयर स्पेस बंद करनी ही पड़ेगी. और ये देखिए बिलाल, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक अरसे से चला आ रहा है. ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कोई पहला इकदाम नहीं है. ये कुछ सालों से पिछली हुकूमतों में भी होता रहा है. उनको वार्निंग लेटर्स आते रहे हैं, लेकिन सैडली किसी ने इस चीज को इतना सीरियसली लिया ही नहीं है कि लुक इनटू दिस इशू मोर डीप. हमारे मिनिस्टर क्या कर रहे थे फिर? यही तो है ना. देखें आप भाई, आप बताइए, आप क्या मेरी वेरिफिकेशन करेंगे अगर मैं आपसे रिलेटेड हूं? आप यहाँ मसला सबसे बड़ा यही है. देखिए बिल्कुल सही पता कि आप मेरे भी कुछ लगते हो, मैं आपकी वेरिफिकेशन क्यों करूंगा भाई? मैंने ही आपको रखवाया है, तो देखिए क्यों करूंगा? आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कोटा सिस्टम. जी. I mean, I know you have relatives. Your own father was in PIA, and I know how it all works too. ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. PIA हो या सिविल एविएशन हो या कोई और सी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, खाली एयरलाइन की बात क्या करें, किसी भी शोबे में ले लें, किसी भी इदारा में ले लें, quota system in Pakistan does not exist. And I'm going to repeat this thing: quota system in Pakistan does not exist. That quota system. The quota system is every wazir come, every government come, their quota that they have. Oh, that quota. हाँ, वो तो खैर वो quota तो खैर है ही है, वो तो खैर है ही है. But I'm talking about equal opportunity employers. No. That concept, equal opportunity employers, does not exist in Pakistan, especially in our airlines. It does not. No such a thing. ये इस बात का मैं completely कहता हूँ कि there is no such a thing. मैं वो कह रहा था कि जो मिनिस्टर आता है उसका अपना एक, भाई मुझे इतने बंदे लाने हैं. हाँ, वो तो खैर गिवन चीज है. I mean, sadly, this is the nature of the business apparently. मैं उसको कह रहा हूँ, उनका कोटा होता है कि मैंने इतने बंदे लाने. हाँ, वही चीज खराब करती है आगे चल के, इन चीजों को, हमारे इदारों को खराब करती है. अभी होता ये कि देखें आप, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे. देखें टेस्टिंग का होता है कि अगर you're my relatives, right? Somehow you're my relative. अब होता ये है कि हमारे जो PIA है या कोई एयरलाइन है, उसमें किसी के चाचा हैं, तो ताया हैं, तो भांजे हैं, तो मामा हैं, तो whole family is there. So basically अगर आपकी टेस्ट, अब हमारे PIA के पायलट्स या कोई भी एयरलाइन में होता है कि हर 6 महीने के बाद आपको टेस्ट करना पड़ता है. आपको टेस्टिंग होती है, उसमें मुख्तलिफ ड्रिल्स होती हैं, इंजन फेलियर्स और कोई से मुख्तलिफ सिनेरियो दिए जाते हैं, एंड यू गेट टेस्टेड ऑन हाउ यू गोना हैंडल द एयरक्राफ्ट. मैनुअल फ्लाइंग होती है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं. अगर टेस्ट करने वाला, मैं उसको फोन उठा के ये बोलूं कि ये मेरा, जिसके आप टेस्ट कर रहे हैं वो मेरा भांजा है, सो प्लीज मेक श्योर टेक केयर ऑफ हिम. तो जो टेस्ट ले रहा है उसको भी अपनी जॉब चाहिए. वो जॉब, अपनी जॉब की सेफ्टी के लिए, या आपकी रिश्तेदारी में, या उस मे बी ही और शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू. तो द सिस्टम की, होल सिस्टम, उसकी जो इंटेग्रिटी है, टेस्टिंग की जो एक इंटेग्रिटी है, वो कहाँ जाएगी? उसमें यही तो है. देखिए अभी PIA के हम दोनों ने, आपने और मैंने डिस्कस किया था कुछ हफ्ते पहले, PIA की जो फ्लाइट जो क्रैश हुई थी. अब उस फ्लाइट को, उसमें इतनी गलतियां हुई हैं उस पूरी फ्लाइट में. I mean, how can you qualify this person to fly? And I mean, I understand we should not be talking about person who has passed away, लेकिन जो कैप्टन थे उस फ्लाइट पे, उनको देखें, PIA में जब आप एंटर होते हैं उसमें साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है. उसमें जो डॉक्टर, I understand Dr. Huneza is one who is running this psychiatric whole department. According to her, the captain of that flight was उनकी जो psychiatric evaluation थी, he did not pass it. Wow. So how did he enter back? That and he was still flying.
एब्सोल्युटली होता ये है कि देखिए पाकिस्तान के जो है पीआईए के जो आप जब पायलट बनते हैं उसमें यू हैव टू गो थ्रू साइकेट्रिक इवैल्यूएशन जस्ट प्रीटी मच लाइक एनी अदर एयरलाइन। अब होता ये कि जो यहाँ से पास नहीं करता है वो चले जाते हैं इंग्लैंड चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं वहां पे whatever way I mean कोई भी आप साइकेट्रिस्ट को पकड़ लें and you do a testing with that person with that doctor there और अगर आप वहां का सर्टिफिकेट लेके आ जाएं और पाकिस्तान को चैलेंज पीआईए को चैलेंज करें कि देखो ये हमारे पास सर्टिफिकेट है एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डॉक्टर आई एम फिट टू फ्लाई लेकिन आप भले पीआईए से रिजेक्टेड हो पीआईए से आपको है ना कहते हैं डिनाई किया गया हो लाइसेंस आपका लेकिन आप अगर बाहर का लेकर आ जाए पीआईए आपको रख लेती है क्यों रख लेती है व्हाई हु इज देयर टू एनफोर्स ऑल द रेगुलेशंस And why you have your own doctor for that? तो फिर आपके पास वो डिपार्टमेंट ही क्यों है जो कि एनफोर्स ही नहीं कर सकता है इस Yeah, तरह when के you're going to override that. हाँ When you're going to override that, why you have that such a well that is the problem I mean it can be overridden any time and which is where things are wrong आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए और सबके लिए बनाने चाहिए एवरी लेवल ये नहीं कि खाली पायलट्स के लिए हो उसमें ग्राउंड इंजीनियर्स के लिए भी सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कैबिन क्रू के लिए होने चाहिए मैनेजमेंट पायलट्स के लिए होने चाहिए हर लेवल पे होने चाहिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूल्स हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा है फॉलो कोई नहीं कर रहा है और उसको और रूल्स को जो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी होती है वो होती है सिविल एविएशन देखिए लाइसेंस जो भी इशू हुए हैं वो पीआईए से इशू नहीं हुए हैं वो सिविल एविएशन से इशू है दे बोथ वर्क हैंड इन हैंड पीआईए के बगैर सिविल एविएशन का कोई काम नहीं है सिविल एविएशन के बगैर पीआईए का कोई काम नहीं है दे हैव टू वर्क हैंड इन हैंड सो इसी वजह से मुझे ये सवाल उठता है कि जब ये चीजें पता थी गुलाम सरवर को या उनसे पहले की जो भी गवर्नमेंट्स थी उनको पता था ये अचानक नहीं हुआ ये मामला ये होता चला आया है तो पहले इन चीजों को क्यों नहीं उठाया ये कोई अभी की बात तो है नहीं तो ये अगर पीआईए को पता था कि उनकी ट्रेनिंग में कुछ लूप होल्स हैं कुछ धांधलियां हैं तो ये सिविल एविएशन को कैसे नहीं पता हो सकता और अगर सिविल एविएशन में कोई जाके टेस्टिंग इस तरह कर रहा है कि कोई किसी और अपने रिटन टेस्ट की जगह किसी और को बिठा रहा है तो ये बात पीआईए को कैसे नहीं पता दे हैव टू आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव when these two departments work so close to each other, how come they were so totally unaware of situation? मैं कहूंगा कि एक दूसरे पे ये पत्थर नहीं फेंक सकते क्योंकि शीशे के घर में रख के आप एक दूसरे पे पत्थर नहीं फेंक सकते Sadly, things, एक दूसरे के जैसा तो बताया कि वो उसके लिए किसी ने करनी होती है और दूसरे ने उसके लिए करनी होती है इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कहते एब्सोल्युटली जहां तक इम्पैक्ट की बात देखें पायलट्स की इम्पैक्ट जो होगा वो तो उनकी जॉब्स के लिए इम्पैक्ट होगा चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एयरलाइन की बात कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट एज एन एयरलाइन एंड एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जी फर्ज जैसे आप कह रहे थे कि पायलट्स के ऊपर तो इम्पैक्ट हो गया लेकिन इसका इम्पैक्ट पीआईए के ऊपर क्या होगा आप ये बताइए प्लीज देखिए पीआईए पे इम्पैक्ट देखिए पीआईए इज एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान राइट सो अभी ये जो स्टेटमेंट जो दी है गुलाम सरवर खान ने उससे जो प्रोटोकॉल जो लिया है यूरोपियन यूनियन ने EASA वगैरह ने उसमें ये कि उन्होंने बैन कर दिया पीआईए को जो भी यूरोपियन डेस्टिनेशन थी देखिए होगा ये जो कि मुझे लगता है मुझे पूरा यकीन है ऐसा अब होगा देखें आपका किसी डेस्टिनेशन यूरोपियन डेस्टिनेशन में जाना वो तो बैन हो ही गया है अब हो गई जैसे फॉर एग्जांपल आपके टोरंटो में पीआईए जो फ्लाई करके जाता है देखें जो जहाज पाकिस्तान से उड़ता है और कनाडा में लैंड करता है दे गो ओवर द एयर स्पेस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज राइट तो मेरा जहां तक ख्याल है ये भी हो सकता है कि वो कंप्लीटली आपको ओवरफ्लाई की परमिशन भी बैन कर दें अभी तो आप खाली डेस्टिनेशंस को बैन लगाया है आप उस यूरोपियन डेस्टिनेशंस में नहीं जा सकते इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा भी हो जाए अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं हुआ जिसकी वजह से वो थोड़े सेटिस्फाई हो जाके आपने कोई ऐसा प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया वेरिफिकेशन का तो ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलें कि आप जो हमारे कंट्रीज के ऊपर से ओवरफ्लाई करते हुए जाते हैं हम ओवरफ्लाई भी आपका बंद कर देंगे उसके बाद आपके पास क्या चॉइस रह जाएगी बिलाल अलावा ये कि आप पोलर रूट लें या आप सदर्न रूट लें आप कोई भी रूट लेंगे उससे होगा ये कि आपके फ्यूल कंजम्पशन आपको एक्स्ट्रा फ्यूल लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब आपके southern route is
very like is very long, right? और वो उसका impact PIA के ऊपर बहुत होगा. What about the northern route? Is our pilots are they equipped for that? well sadly यहाँ सबसे बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो पीआईए जो थी उसकी कोई ऐसी डेस्टिनेशन आई अंडरस्टैंड अभी जो मैंने पता किया है पीआईए में कोई ऐसी पीआईए के नेटवर्क में कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं थी जिसके लिए हमें नॉर्दर्न रूट लेना पड़ता हो which जी. also means हमारे पास कभी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था नहीं जो हमारे पायलट्स के लिए क्योंकि आपको कोई भी रूट्स बजाएं जैसे आप नॉर्थ अटलांटिक जाते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या आप कोई भी जगह पर जाते हैं स्पेशली नॉर्थ पोल के जो भी रूट्स हैं क्योंकि वहां पे बहुत it's not an easy surface or it's not an easy airspace there's a lot of things you have to learn about it जिसके लिए आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ता है चूंकि हमारे पीआईए को कभी जरूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि वहां पे कोई डेस्टिनेशन नहीं थी तो इसलिए कभी उन्होंने कभी ट्रेन नहीं किया हमारे पायलट्स को आई मीन पीआईए के पायलट्स को कभी ट्रेन ही नहीं किया वो नॉर्दर्न रूट्स को फ्लाई करने के लिए और अब अगर हमें कनाडा आना पड़ेगा या कोई भी ऐसे कंट्रीज के जो इम्पैक्ट होंगे एयर स्पेस जो है यूरोपियन एयर स्पेस अगर बंद कर देती हैं ओवरफ्लाई राइट्स आपके खत्म कर देते हैं तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगी आपको अलावा नॉर्दर्न रूट लेने के अब नॉर्दर्न रूट जो लेंगे अभी हमारे पास आई डोंट थिंक हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने सारे पायलट्स को जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनको इतनी स्पीड में ट्रेन करें पोलर रूट्स पे फ्लाई करने के लिए वो एक ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है उसका इम्पैक्ट पीआईए में और क्या पड़ेगा देखें पीआईए अगर आप नॉर्दर्न रूट लेते हैं या सदर्न रूट लेंगे तो उसमें आपका फ्लाइट टाइम बढ़ जाएगा उसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू पीआईए का और कम हो जाएगा क्योंकि And आपको time as well. If it's going to take longer time, people are not going to fly with it then. it's a possibility it's a very very good possibility क्योंकि जब देखें एक तो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट वैसे ही बहुत लंबी फ्लाइट्स होती हैं दूसरा ये कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा 2 या 3 घंटे ऐड कर दें तो it's unbearable 14 to 15 hours flight from Pakistan to Toronto. Is it 15 hours or something? That's right, direct flight. Well, then add extra couple hours in there. So and that's going to take. To be honest, at this point, इतने हमारे लोग एक तो इतने वो भी नहीं है कि oh they love Pakistan and all that they want to love to fly with PIA. No, of course they're going to take another opportunity to go with somebody else, and it's going to be cheaper for them too. In this point, कि जैसे आपने कहा कि fuel ज़्यादा अगर जल देता है and all those kind of things, so it's going to be more expensive for PIA. डेफिनेटली क्योंकि उनको जब अपने रेवेन्यू का ज़ाहिर इतना लॉस तो नहीं लेंगे वो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पीआईए की जो टिकट्स हैं उनके फेयर्स बढ़ जाएंगे इन डेस्टिनेशंस के लिए तो it definitely going to impact it's going to have a lot of impact on the revenue generation so they can at this point I want to ask you a question is it maybe it's an opportunity for Pakistan or PIA to reform themselves somehow to make some changes absolutely I agree with you on that देखें हर मुश्किल में एक खैर भी होती है मेरा जहां तक ख्याल है कि time has come where we all need to sit down and seriously make an effort to do the total overhauling total reform और मेरे ख्याल में भी वक्त की जरूरत भी ये है और अगर हम जो अब तक हमारा जो सिविल एविएशन के इदारे हैं पीआईए की मैनेजमेंट या जो भी ऐसे इदारे हैं जो कि एक चेंजेस ला सकते थे उन्होंने काफी प्रोक्रेस्टिनेट किया है ये अभी की बात नहीं है पिछली हुकूमतों का भी यही तरीकाकार रहा है पीआईए इज नॉट देयर प्रायोरिटी तो अब चूंकि इयासा ने भी बोला है आपको कि यू आर नॉट गोना बी एबल टू फ्लाई अंटिल यू सॉर्ट दीस इश्यूज आउट और ये कोई जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है इयासा की तरफ से इवन एफए की तरफ से और मुख्तलिफ दूसरी जो सिविल एविएशन की अथॉरिटीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों की अब आप पे इतना प्रेशर आ गया कि अगर मेरा जहां तक ख्याल है अगर आपने अब भी चेंजेस नहीं लाई तो पाकिस्तान में एविएशन का जो स्कोप है और दूसरा जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकेगी यू हैव टू मेक सम चेंजेस नाउ एंड टाइम इज नाउ आपने इतना डिले कर दिया है कि अब दूसरी तरफ से लोग आप पे प्रेशर मार रहे हैं कि आपको ये चेंजेस लानी पड़ेंगी सो लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे चलो अब तक जो हो गया वो हो चुका है
लेकिन आई थिंक विद दिस गवर्नमेंट राइट नाउ वो फिर भी थोड़े सीरियस लगते हैं इस मामले में, एंड आई रियली थिंक आई रियली सजेस्ट देम टू मेक सम एफर्ट। आप स्टार्ट करें सिविल एविएशन से, आप उन लोगों को भर्ती करें जिन जो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में महारत रखते हैं और उनको वही पोजीशंस दें। आपको सबसे पहले तो सिविल एविएशन का एक है इदारा, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपका फिर जब पीआईए की बात आती है, आपको पीआईए को ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू करना पड़ेगा। पीआईए की एमडी और पीआईए के जो मैनेजमेंट टीम है वो है, और पीआईए के जो पायलट्स के हैं, चीफ पायलट्स, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, ये सब आपको देखें इतना खराब हो चुका है ये मामला, एंड ट्रस्ट मी इट्स इररिपेयरेबल। आपको बहुत ही कोई आई मीन लाइक अ टोटल ओवरहॉलिंग करना पड़ेगी। ये जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम को आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, विच मींस आपके पास कोई पायलट, कोई कैबिन क्रू, कोई इंजीनियर, कोई भी ऐसी चीज, पहले जो आ गए वो आ गए, लेकिन अब जो मेरिट सिस्टम के ऊपर आपको लाना पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। देखिए फॉरेन एयरलाइंस जो आपके मुकाबले में जिनको आपने खुद बनाया है, एमरेट्स के पास 140 डिफरेंट नेशनैलिटीज काम करती हैं। वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, अपने जॉब फेयर करते हैं, वो क्रीम ऑफ द क्रॉप हायर करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आते हैं अपनी कंपनी को काम करने के लिए, विच इज वाई दे आर फेमस। उनकी कारकर्दगी और आपकी कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क ही इसलिए क्योंकि वो उनका जो हायरिंग प्रोसीजर है वो उसमें I mean, उनकी इतनी सारी टेस्टिंग होती है, और मोस्टली I mean I would say at least 90% of their testing is strictly on merit। आप क्रीम ऑफ द क्रॉप को पाकिस्तान में लेकर आए, आप पीआईए में उन लोगों को हायर करें। हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास जो नौजवान हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, आप यकीन करें जो मुल्क एमरेट्स बना सकता है वो पीआईए को कहाँ ले जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक तरफ, हम लेते हैं ब्रेक। You guys are watching Studio Chart Time only on TV Chart, concept by Haima Khan, and we'll be right back. There's a few more questions, so wait for us. We'll be back. Studio Chart Time only on TV Chart, concept by Haima Khan। आपका होस्ट बिलाल हुसैन और हमारे साथ हैं फराज हुसैन, जो कि हमें डिटेल्स दे रहे हैं कि ये सिचुएशन क्या हुई थी और क्या इसका हल हो सकता है। एंड इसी की तरफ हम चलते हुए उनसे कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक कंपनी जो कि पायलट्स और इंजीनियर के लिए जानी जाती थी, मानी जाती थी, जिसने दूसरी एयरलाइंस को हेल्प किया बिल्ड होने में, all of a sudden, like not all of a sudden, it's been so many years, why is people going down? Why? ये क्यों नहीं वापस आई और क्या कैसे वापस, इससे पूरे में इसका सिस्टम क्यों खराब हुआ? प्लीज इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे। बिलाल, इट्स रियली सिंपल। देखिए पाकिस्तान में आई मीन होता यह है कि इतना इन्फ्लुएंस है पीआईए के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का, और उसके जो पीआईए को जो इस डगर पे लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिशियंस की है,
हर कोई जो भी पावर में आता है वो अपने लोगों को लाता है. वी डिस्कस अबाउट दिस अर्लियर. जी अब मसला ये कि देखिए, अगर आप अपने लोगों को लाना भी चाहते हैं, अगर वो मेरिट पे आ रहे हैं और अगर उनके पास वो क्वालिफिकेशन है टू डू द जॉब प्रॉपरली, तो चलें, ठीक है. आई मीन ओके, आई मीन फिर भी चलें, आप ले आए लोगों को. लेकिन हमारे यहाँ होता ये आया है कि इट्स अ कल्चर, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ रूटीन. आप उन ही लोगों को लेकर आते हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करते उस जॉब को करने के लिए. और दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि देखिए, एक वैकेंसी निकली होगी, आप उस एक वैकेंसी में कम से कम अपने 10-15 लोगों को डाल देंगे. तो होता ये कि एक वैकेंसी होती है लेकिन 15 लोग उस पर सैलरी कलेक्ट कर रहे होते हैं. तो ये कौन देगा? ये सारा रेवेन्यू जो जाता है ये पीआईए से ही चला जाता है. पीआईए कैसे प्रॉफिट शो करेगा जब एक एक वैकेंसी पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक या दो वैकेंसीज में 40-40 लोग काम कर रहे होंगे? दैट्स आपने जो जैसे सवाल आपने किया तो बताया पहले कि इस अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप, रिफॉर्म, राइट, आई ओवरऑल की यस. जरूरत है, कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है, ताकि हम एक नई प्रॉपर सिस्टम से निकले, ताकि ये बाय द वे व्हाट वाज द रीजन चीट ऑन ऑल द सिस्टम. ठीक है, आप किसी को लेके आ रहे हो सिफारिश पे, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे को क्वालिफाई तो होना चाहिए. यही तो डाउनफॉल है, यही चीज का तो रोना है. आप देखिए, किसी भी एयरलाइन में जाइए, किसी भी फॉरेन एयरलाइन में चले जाएं, हाँ, रिकमेंडेशन, देखिए, रिकमेंडेशन एक अलग चीज होती है और सिफारिश एक अलग चीज होती है. हमारे यहाँ सिफारिश उन लोगों की जाती है जो कि क्वालिफाई नहीं करते. आप रिकमेंड करें, आप बिल्कुल रिकमेंडेशन लेटर दें उन लोगों को जो कि आपको मालूम है कि दे विल बी एसेट फॉर द कंपनी. लेकिन हमारा मसला ये है कि सिफारिश उन लोगों की जाती है जो कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जॉब करने की वो ही लैक कर रहे होते हैं. तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कंपनी को आगे बढ़े जहां का स्टाफ ही सिफारिश पे आया हो, और उनकी रिश्वत पे आया एजुकेशन भी हो? छोटी होती है और उनका किसी और काम के लिए रखा जा रहा होता है. Sadly, that is the fact. What to say? That's a very sad situation. I also want to ask you a question about about the PIA, the two sister pilots, right? Can you put some light on that as well? Well, I mean, I don't personally know them, of course, but I've heard and I read a lot about them. One of the, I mean, Masood's sister, Iram and Mariam Masood, I believe. One may say, I think Mariam Masood was even, she was even involved in an incident in Gilgit, which पे जहाज slid off the runway, and I understand she was responsible for that too. तो देखें, गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, लेकिन उन लोगों का भी नाम इस लिस्ट में आया, दोनों बहनों का नाम भी लिस्ट में है. तो ये 262 पायलट्स में, उसमें जी. उनके ऊपर आई थिंक एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ अपने रिटन जो एग्जाम्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स के किसी और से करवाएं. नाउ I'm not gonna just convict them because उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है. दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन एट दिस पॉइंट. लेकिन ये है कि ऐसे कई केसेस हैं. देखें, मसला ये कि जिन लोगों के अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन एट दिस पॉइंट इज सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट, क्योंकि हमें खुद एज अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पायलट एंड यू योरसेल्फ, हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारी एयरलाइन में हायरिंग का सिस्टम कैसा है, हमारे एग्जाम्स किस तरह लिए जाते हैं. We all know what the facts are, and that is what we need to change at this point. I have another question for you. Sure. Anybody ever raised this concern before this accident? Actually, like any report came out before that? जी हाँ, ये मैंने खुद अभी देखा है. थोड़े कुछ अरसे पहले मुबशर लुकमान जो कि वेरी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो खुद भी पायलट हैं, उनके एक शो में मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ अबाउट लाइक 17 पायलट्स फ्रॉम पीआईए, मोस्ट ऑफ दोस पायलट्स एटीआर के पायलट्स थे, कैप्टन्स थे, उनकी एक लिस्ट उन्होंने भेजी थी सिविल एविएशन को, क्योंकि उस पे बहुत ही सवालिया निशान थे उनके क्रेडेंशियल्स पे, लाइसेंसेस एंड हाउ दे डिड देयर टेस्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ. मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ जवाब मिला है उन लोगों के ऊपर. लेकिन ये जहां तक ये बात है कि इस बारे में किसी ने आवाज उठाई थी, जी हाँ, इस बारे में आवाज उठाई है, लेकिन ऑफ कोर्स इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई. हमारे एविएशन के मिनिस्टर उस टाइम क्या कर रहे थे? He knows better. Your answer. मैं उनसे ये इंडिरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो क्या कर रहे थे इस बारे में. Well, Like where was he at that time कि जिसका ये जॉब है कि कोई अगर उंगली उठा रहा है
तो उसके ऊपर टेस्ट चेक किया जाए एंड ही शुड गिव द आंसर टू दिस टू। देखें, आप उसकी बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने आपको बैन करने से पहले, कोई ऐसा नहीं कि आपको अचानक बैन कर दिया। जी यासा ने आपको पीरियोडिकली आपको लेटर्स भेजे हैं, आपको वार्निंग लेटर्स भेजे हैं, आपको काफी मेमोज भेजे हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट योर एयरलाइन इज लैकिंग, और अगर आप हमारी फिजाओं पे फ्लाई करना चाहते हैं, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्टैंडर्ड्स यू मस्ट मीट। हमने उसके ऊपर कान नहीं धरे। आप 17 पायलट्स की बात करते हैं तो कोई ओवरराइड इस तरह की चीज नहीं करता। मींस देयर मस्ट बी हिस्ट्री ऑफ दैट, दैट्स द रीजन दे जस्ट स्टैंड कि अब बैन कर दिया जाए। बट एट दिस पॉइंट वी अंडरस्टैंड दैट कि पाकिस्तान के एक सर्टेन अमाउंट के हुए। आई हर्ड अनदर न्यूज़ अबाउट Indian 4,000 fake pilots. You heard about that? यस एब्सोल्युटली। आजकल जो न्यूज़ है जो कि इंडिया के खुद ही डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन, ये उनके खुद की रिपोर्ट आई है कि ऑलमोस्ट लाइक 4,000 इंडियन पायलट्स हैव अ फेक लाइसेंस। और उस पे तो जहां तक मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है इस बारे में, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये फिगर दिए हैं। तो I don't know what the recourse gonna be, how they're gonna I don't know उनके अभी तक तो उन्होंने खाली ये डिक्लेयर किए 4,000 पायलट्स। आगे वो क्या इकदाम लेंगे, we don't know, it's yet to come, and I'm kind of curious how they're gonna very do it. serious for the world, क्योंकि आपको भी पता है कि मींस basically airplane is the safest way of transportation. That's अगर correct. इसी में ये चीज वाला शुरू हो जाए, that's everybody's going to be scared to fly then, right? Especially with the Pakistani airline or South Asian airline at this time, I can say. Well, that's true. The whole southeast region that we have, उसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी उठे हैं, अब भी उठ रहे हैं, और अल्लाह ना करे आइंदा ऐसे सवालात उठें। लेकिन ये है कि ये 4,000 पायलट्स जो हैं, जाहिर है they probably fly all around the world, so I'm not going to be surprised अगर down the road, अगर थोड़े अरसे के बाद अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है इनके ऊपर कोई बैन लगता है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। Hopefully the things go in a positive way. लेकिन ये सिचुएशन बहुत बुरी है एंड hopefully क्या ये इस पे quickly कोई एक्ट करे कि they, as you said, there's a time to reform, so they have to do something to get back in the game. देखिए, पीआईए के पास अभी बहुत कम टाइम है। पीआईए को अगर उनको आगे अपने आप को बढ़ाना है तो उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं, क्योंकि वो इतना घिर चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसी से, लाइक EASA हो गई, FAA हो गई, और आपका अभी मलेशिया की तरफ से हो रहा है, वियतनाम की तरफ से हो रहा है। हर मुल्क की एसोसिएशन जो है, सिविल एविएशन जो है, वो आपको बोल रही है इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद अस यू हैव टू टेक दीज मेजर्स। नाउ चॉइस इज योर्स। अगर आप चाहते हैं पीआईए को बिल्कुल खत्म कर दें, डाउन साइज ही खाली नहीं, या अगर उसको खाली डोमेस्टिक एयरलाइन बनाना है आपको, देन इट्स ओके। लेकिन आपको उसको अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल एयरलाइन के लेवल पर रखना है, यू हैव नो टाइम एंड यू हैव नो चॉइस। यू हैव टू डू सम overhauling in your departments. That's all. There is no other way around. That's true. Hopefully that happens very soon. इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जाते जाते आप हमारे TV4 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को एक मैसेज जरूर दूंगा। देखें, पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, ये खाली पाकिस्तान की एयरलाइन नहीं है, ये आपकी अपनी एयरलाइन है। ये आपको भी रिप्रेजेंट करती है, खाली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। और आप यकीन करें, ये किसी एक ग्रुप या एक गवर्नमेंट या एक रीजन की मलकियत नहीं है, ये आपकी मलकियत है। आप इसमें इंटरेस्ट लें, आवाम को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आवाम को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप सवाल करें। देखें, आपकी ही फैमिलीज इन जहाज़ों में बैठती है, आपकी ही फैमिलीज इन पायलट्स के साथ फ्लाई करती है, आपकी ही फैमिलीज इस जहाज से बैठती है जिसमें ग्राउंड इंजीनियर्स काम करते हैं। तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको एज अ जनरल पब्लिक, आपको एज अ पाकिस्तानी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप खुद सवालात नहीं करेंगे अपने मिनिस्टर से, अपने एविएशन मिनिस्टर से सवालात नहीं करेंगे, अपने MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PIA से, उनसे सवालात नहीं करेंगे, आप जब तक कन्फ्रंट नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, यही होता आएगा। ये आपके हाथ में है, ये आपका मुल्क है, ये आपकी एयरलाइन है। तो मैं तो आपसे एक गुजारिश करूंगा। And I do question this. My question also goes to CEO of PIA as well at the same time. What he's been doing. I think he's been for a couple of years. He's been the CEO of Pakistan Airlines. What he's been doing
hopefully he brings PIA out of this troubled time. Right? ये मेरी दुआ है उनके लिए. Right? जी जी आप बिल्कुल. इसमें कुछ वर्ड कहना चाहेंगे या इजाजत लेने से पहले? हाँ, यही कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड अगर उनको अच्छी सारी अथॉरिटीज उनके हाथ में हो तो ही कैन ब्रिंग द रिफॉर्म. लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड उनके पास भी काफ़ी उनके हाथ बंधे हुए हैं. काफ़ी उनके जो प्रोजेक्ट्स उनके दिमाग में थे पीआई को बेहतर करने के, पीआई की फ्लीट को बेहतर करने के लिए, स्टाफ को बेहतर करने के लिए, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत रेसिस्टेंस है. But he has to stay strong. It's not about only one airline. It's about Pakistan. That's all what it is. इसी के साथ हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे. फराज हुसैन और बिलाल हुसैन को इजाजत दीजिए. You guys watching Studio Chart Time on your TV chart. Concept by Hammer Khan. इजाजत दीजिए. Next time मुलाकात होती है. ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजीरी जवानी कहीं. जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थर जैसा ना कोई. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे कनाडा के लोग. मैं हूं आपका सलमान अली, इंडियन आइडल 10 का विनर. मैं जब लास्ट ईयर आप लोगों के पास कनाडा जब आया था कॉन्सर्ट करने के लिए तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत सारी दुआएं दी थी एंड बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दिया था. मैं एक बार फिर आप लोगों के पास एक लाइव ऑनलाइन कॉन्सर्ट लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है ओनली ऑन स्टूडियो 4 प्रेजेंट स्ट्रिंग्स कनेक्शन, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान विद सलमान अली. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फिर से उतना ही प्यार देंगे जैसे हमेशा आप मुझे प्यार देते हो. और बस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अगर आप लोग भी मेरे साथ एक्साइटेड है तो हो जाओ तैयार. सो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट. सी यू सून गाइस. राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान के लोग, राजस्थान का स्वर. आज तो तुम सलमान अली नहीं हो, सलमान अली सर. गाना कौन से बीच का था, कौन से बीच में लेके गए गाने को? सलमान, ये सिर्फ आपके लिए है. मैंने इतना हाई गाने वाला बंदा जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा. साथी पाया तेरा सिर्फ एक ही बात बोलूंगी और वो मैं आपसे नहीं बोलूंगी, वो मैं गणपति बप्पा से बोलूंगी. मैं कहूंगी बप्पा थैंक यू सो मच हमें सलमान अली जैसा महान सिंगर दे. दिखते हैं इतने मतलब आराम से, यंग बॉयज कम हियर, और जब आप आलाप लेते हैं व्हाट पावर इन दैट वॉइस, इट्स अमेजिंग. सलमान, आपकी आवाज में जो है एक देसीपन है. ऐसा लगता है कि देश के दिल से जो धड़कन निकलती है उसकी आवाज ऐसी होती है. तालियां रुक नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां. वो है सलमान अली. Let's go. Thank you.